شادی کے موقع پر آپ کو کچھ ایسی باتیں دے دوں کہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آدمی تلاشتا ہے نا، ڈھونڈتا ہے۔ ایک موبائل کو لے لیجئے، اس چکر میں رہتا ہے یار موبائل میں کب آفر نکلے اور اس کا ریچارج سستا ہوگا۔ ایسے ہی عمرہ شریف جانے کے لیے اس جگاڑ میں رہتا ہے کہ یار کب آفر نکلے گا، ٹکٹ سستا ہوگا، سستا پیکج ہوتا نہیں ہوتا، مطلب آفر کے چکر میں رہتا ہے، فری، آسان، بغیر مشکل کے ہو جائے۔ کہتے نہیں یہ چیز لو ایک کے ساتھ ایک فری، یہ آفر نکلا ہے۔ تو میں ایک دن سوچ رہا تھا تو قرآن شریف پہ اور احادیث نبویہ پہ نظر گئی، تو آج کے جلسے میں دینی اور اسلامی آفر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی، زیادہ مشکلات سے گزرنا نہیں پڑے گا، تلوار لے کے جنگ کرنی نہیں پڑے گی، اور ڈھیروں نیکیاں کما سکتے ہو آپ۔ اگر اجازت ہو تو وہ راستے بتاؤں، سننا چاہ رہے ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ کہو گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ وہ آفر، وہ نیکیاں، ہر آدمی یہ سوچتا نا بہت زیادہ محنت کرے، بہت زیادہ نہیں، پورے اسلام کو سامنے رکھیں، یہ علماء جانتے۔ اس کے بعد اب جو آفر نکلے ہیں آج کے پروگرام میں، ذرا توجہ سے، یہ محمد احمد بھائی ہیں کون سے؟ او ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر کا فرمائے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، ورنہ تو ڈی جے بجتے ہوتے۔ ابھی یہ دولہا میاں آ گیا، ماشاءاللہ دولہا میاں بھی آج دولہے میاں لگ رہے ہیں، اللہ برکت، جاؤ لگیں گے، اللہ برکت۔ ڈی جے رکھ لیتے ہیں اور محرم میں ناچنے والے گھوڑوں کی کمی ہے ہی نہیں، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے ہڑدنگے ہیں، سمجھے جہاں دیکھو شرٹ اتاری اور کمر مٹکا رہا۔ اب تو گانے والوں نے گانے بھی، اچھا تمہیں یہ بات اچھی لگی، اب تو گانے والوں نے گانے بھی وہی کمر مٹکانے بھی بنا دیے، کمریاں مٹک رہی ہے اور خوب مٹکا رہا۔ لیکن سنو، توجہ رکھنا، اب میں حدیث قرآن کی آیت اسلام سے جو باتیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ نماز پڑھتے ہو؟ بڑے دھیرے بول رہے ہو، کیا گول چل رہی ہے کیا؟ ماشاءاللہ۔ ارے ڈر کیوں رہا، جمعہ کے دن تو پڑھتے ہی ہوگا نا۔ بعض اتنا سنیچر ہے جمعہ بھی گول کر دیتا، اس دن بھی نہیں نہاتا۔ 5 وقت کی نماز فرض، توجہ رکھنا، کتنے وقت کی؟ اب نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں جا کر۔ اب یہاں سے آفر شروع ہوتا ہے، نمازیوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ آفر۔ پاک صاف رہے، وضو بنائے، نماز کا ٹائم بھی نہ ہو، خالی آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، وہاں پر قرآن بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، خالی بیٹھ جائے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں نبی کی حدیث، علامہ زمخشری لکھتے ہیں مسجد میں بیٹھنے والا 1 گھنٹہ یا آدھے گھنٹے میں جتنی سانسیں لے گا، ہزاروں سانسیں لے لے
सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से, जो चौराहों पे बैठे बैठे गप्पे मार रहे हो, जो चायों की दुकानों पे रख दो बेटा, जो चायों की दुकानों पे या इधर उधर खाली वक्त और खाली नहीं बुराई करने पे आ जाता है, गीबत करने पे आ जाता है। अब न छोड़े आलिम साहब को, न छोड़े इमाम साहब को, न छोड़े नमाजी साहब को, इतना मुंह का बक्का है और ये समझता कि सबसे बड़ा मुफ्ती में, सबसे बड़ा नेता में, सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार में। मगर बताओ यहां से लेकर के यहां तक कितने लोग हैं जो खाली मस्जिद में जाकर के बैठते हैं? क्या 24 घंटे में तुम्हें टाइम नहीं मिलता? अब तो ये फैशन निकला है, जुमे के दिन बस सलाम फेरा, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, 8-10 लड़के मस्जिद भाग जाते, नफल भी नहीं पढ़ते, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं। ऐसा लगता कि सबसे बड़ा मुफ्ती है, कुरान की जाके तफसीर या मसाइल इस्तिंबात करेगा, ये उससे ज्यादा जरूरी है मस्जिद में खाली बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी सांस लेगा और सांस पे 400 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाएगा। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। बेशक बेशक हक। आदत बनाओगे अच्छी, बोलो 5 वक्त की नमाज पढ़ो। नमाजी लोग भी ये समझते हैं 5 वक्त की पढ़ ली, पढ़ने के बाद अब चौराहों पे बाज बुजुर्ग बूढ़े आदमी को काम का है ही नहीं, या तो बमुओं से लड़ रहा है या फिर इमाम से लड़ रहा है। बमुओं के पास चलती नहीं, इमाम को रपटा लेता ही। और बाज बड़े सुलझे हुए, वो बेचारे आके अल्लाह अल्लाह मस्जिद में फजर से पहले आ जाते हैं, वुजू बनाते हैं, बैठे रहते हैं, कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं। सबसे अच्छी जगह अल्लाह और रसूल के नजदीक अल्लाह का घर मस्जिद है। समझ में आ रही बात? मगर मस्जिद से ऐसा भागता जैसे जेल से जा रहा। 5 वक्त की तो पढ़ते ही नहीं, आगे जाकर के क्या बैठेगा? ये ऑफर नेकी इकट्ठी जमा हो सकती है, कुछ करना पड़ा, खाली बैठना तो ये यार, खाली बैठा तो बैठे बैठे इतनी नेकियां। अब हदीस सुनो, दूसरा ऑफर बता रहा हूं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात व मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति 80 मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु 80 आम्मा। ये औरतों की आवाज बोलने के लिए आ रही है ना, औरतों की जो आवाज बोलने की आ रही है, इन औरतों ने तो बकरियों को भी हरा दिया। देखो कितना हमदर्द आदमी को ऐलान करना। तुम लोग बोल क्यों रहा, मैं देख लूंगा सब। सही बता रहे हो, एक जगह एक बकरी की एक औरत की बहस हो गई, बकरी मर गई, औरत नहीं चुपी। तो ये हमसे आपसे कैसे छुप जाएंगे जब बकरियों को मार देती है? तो अब मुझे पूरी उम्मीद है ये बोलेंगे नहीं, और अगर बोली तो हाथी वाली सुनाऊंगा। हाँ यार, हमारी आवाज इन तक नहीं पहुंच रही, इनकी हम तक आ रही है। तवज्जो, चलो बैठो। जुमे का दिन गुजरा ना, वो बात याद है तुम्हें? मस्जिद में जाके बैठा करो, पाक साफ होकर के बोलो 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे ना,
इंशाल्लाह बोलो। अब दूसरा ऑफर सुनो। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात। इतना प्यारा ऑफर, ये औरतों के लिए भी है, आपके लिए भी। आका फरमाते हैं, मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सिरात पर नूर बनता है। अब आगे वाला ऑफर तो सुनो, वो जो बचा के रखा हूं वो तो सुनो, बिल्कुल सस्ते सस्ते, बहुत मुनासिब। आका फरमाते, अगर कोई जुमे के दिन, कौन से दिन, 80 मरतबा अगर मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ता है तो नबी फरमाते, अल्लाह ताला गुफिर लहू जुनूबु समानीना। नबी फरमाते, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। यहाँ से सगाइर मुराद है, हदीस शरीफ में सगीरा गुनाह, 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। मुश्किल से 80 मर्तबा आप, हम लोग तो 20-22 मिनट में पढ़ लेते हैं, आप लोग मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। तुम कौन से इतने बिजनेसमैन हो, कौन सी तुम्हारी ट्रेनें लूटी जा रही हैं, तुम्हारे हवाई जहाजों में आग लगी जा रही है, कौन से तुम्हारे ट्रक फटे जा रहे हैं, समझे, कौन से तुम्हारे खानदान में अल्लाह ना करे जुमला चढ़ आग लगी जा रही है, कौन से तुम्हारी खेती चुड़ी चुप गई, जो तुम मस्जिद से ऐसे निकल के भागते हो, उसकी चप्पलें गिराई, इसकी गिराई, और बाज तो दूसरे की पहन के भाग जाता है। क्या आधा घंटा नहीं निकाल सकते अपनी आखिरत के लिए? कितना आसान है यार, बहुत ज्यादा भी तो करना नहीं पड़ रहा। और ये जो औरतें चर चर कर मुसल्ले पे बैठ के आधा घंटा नहीं पढ़ सकती। औरतों का चेकअप कराना तो हसद की वजह से फेफड़े खराब निकलते हैं। 80 मरतबा, कितना प्यारा अमल है। तुम्हारे पास नेकियां इतनी थोड़ी है कि यार अपने पास नेकियों की अब जरूरत ही नहीं। एक एक नेकी के लिए आखिरत में तड़पोगे, एक एक नेकी के लिए। एक बंदा ऐसा था ना, उसके सारे गुनाह थे, सिर्फ एक ही नेकी थी। अब बताओ वो कहां जाता। और एक बंदा ऐसा था जिसके सिर्फ एक नेकी की जरूरत पड़ रही थी, एक नेकी की जरूरत पड़ रही थी, फैसला जन्नत का। अब वो अम्मा के पास गया तो अम्मा बोली, मेरे पास तो बहुत कम है। अब्बा के पास, मेरे पास तो बहुत कम है। सबके पास, मेरे पास तो बहुत कम है। तो उसके पास बोले, इधर आ। बोले, यार मैं इस नेकी का भी लेके क्या करूँगा वैसे भी तो जाहिर एक ही है, ले तेरे ही काम बन जाएगा यार, तू चला जा। ये नेकी उसको, अल्लाह को ज्यादा पसंद आ गई। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है ना, करीम है, मालिक है। अल्लाह ने कहा तू भी जन्नत में जा, और जिसने हमदर्दी की तू भी जन्नत में जा। तुम लोग करते हो हमदर्दी? जानवरों से भी हमदर्दी करोगे। पहले के लोग थे ना, सब भाई इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे। छोटा भाई उस वक्त तक सालन नहीं निकालता था तब बड़ा भाई ना निकाल ले। बेटा बाप के सराहने नहीं बैठता था। बोल बैठता था क्या? नहीं। और बड़ा वाला भी, अरे छोटा कहाँ, मजला कहाँ, भूरा कहाँ, कलुआ कहाँ, नाम पहले ऐसे ही थे। ये सारे इकट्ठे कर दिया करते थे। समझ रहे गुड्डू भाई? ये दूल्हा मियां भी तो छोटे से गुड्डू ही है। इनका पूरा नाम क्या तुम्हारा? हाँ, कितना प्यारा नाम है। मगर इनकी दादी ने कह दिया वो मेरा छोटा सा गुड्डू है, तब से गुड्डू आई हो गए। चलो, तो अब पहले